Hello dear students, how are you? I hope you all are in good health. Now beta, in the earlier class we have discussed the definitions of your fundamental physical quantities and fundamental physical units and derived units. What are derived units? What are fundamental or basic units? Now, and these fundamental physical quantities that we have discussed, that is related to SI system. Now for length, mass and time measurement, we have other practical units. We have practical units to measure large distances like the distance between the planets, the distance between stars, and even we can think of very small distances like to estimate the size of an atom, the size of a molecule. Means besides meter, we have different practical units to measure large distances and small distances, and likewise we have other physical units or practical units to measure mass and time also. Now I will discuss here some of the practical units. In case of measurement of distance, I will cover the practical units in case of large distances and in case of small distances. Now I would like to first discuss the astronomical unit. It is the unit, practical unit to measure large distances, and it is generally used to measure distances of planets. Astronomical unit, that is, we will write in the symbol, that is AU, capital A and capital U. Now what is one astronomical unit? It is the mean distance of the sun from the earth. It is the mean distance of the sun from अर्थ. ओके, यानी आप समझ गए होंगे कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना बड़ा यूनिट है, कि ये एक तरह से एक एवरेज डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच में. अगर मैं इसको मीटर्स में एक्सप्रेस करूं तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 into 10⁻11 meters, and this can approximately be written as 1.5. अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो इट इज 1.5 into 10⁻11 मीटर. ओके बेटा, तो जब कभी भी हमें प्लैनेट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, क्या मीन्स मार्स अर्थ से कितनी दूर है, जुपिटर का डिस्टेंस अर्थ से कितना है, तो हम उसको किलोमीटर्स या मीटर्स में नहीं बात करेंगे, हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में बात करेंगे. एंड वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट दैट इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स. That is other thing, but generally to compare, to measure the distances between the planets, we use astronomical unit. Okay, now the another unit to measure large distances, that is light year. अब light year को पढ़कर ये मत समझना कि ये टाइम की यूनिट है. This is the unit to measure distance, and also it is used to measure the distances of nearby stars. यानी कि planets, I mean to say कि जो solar system के अंदर जो distance आता है, तो astronomical unit means हमारे solar system में का जो पूरा size है, उसका जो order है, उस order के अंदर जितने भी distances आते हैं उसमें हम astronomical unit use कर सकते हैं. लेकिन जब बात आती है stars की, यानी we are talking about outside our solar system, राइट, सन, अल्फा सेंचुरी, आपने अर्सा मेजर, अर्सा माइनर,
पोल स्टार, ये अर्सा मेजर, अर्सा माइनर, ये वो स्टार्स के ग्रुप्स हैं, कॉन्स्टलेशंस की बात कर रही हूँ जो हमारे सोलर सिस्टम से परे हैं, यानी और ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंसेस पर हम आ गए हैं। तो उसके लिए जो हमने स्टैंडर्ड सेलेक्ट किए हैं वो और भी ज़्यादा बड़े हैं एज कम्पेयर टू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मीन्स व्हाट इज लाइट ईयर? इट इज द डिस्टेंस traveled by light in vacuum. In vacuum in a year. एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस कवर करेगी, और कहाँ? वैक्यूम में। यानी कि आपको मालूम है 10th में आपने पढ़ा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट है, तो इसकी स्पीड में चेंज आ जाता है। ओके, जैसे वैक्यूम में लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। वहीं पर वाटर में इसकी स्पीड जो एवरेज स्पीड हो जाती है दैट इज 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिक्रीज हो जाती है, एंड देन इन ग्लास इट इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो हियर इट इज मेंशन दैट इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम, मीडियम is specified here in a year. Okay, now in vacuum the speed of light is 3 × 10⁸ meter per second, and you know the formula, that distance is equal to speed into time. So if we take speed that is 3 × 10⁸, टाइम हो गया आपका 1 ईयर, जिसको हम आगे कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो हमने यहाँ डिस्टेंस मीटर में लिया है, टाइम सेकेंड में, तो ये जो टाइम है ये हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो एक साल में कितने दिन होते हैं? वैसे अगर हम कहें स्ट्रिक्टली स्पीकिंग देयर आर 365.25 डेज इन अ ईयर, लेकिन यहाँ मैं 365 डेज ले रही हूँ। इनको मैंने आवर्स में चेंज किया, देन आई कन्वर्ट इट, सॉरी ये थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है फोन। 365 × 24 × 60 × 60, ये हमारा डेज में कन्वर्ट हुआ, यहाँ आवर्स में कन्वर्ट हुआ, ये मिनट्स में कन्वर्ट हुआ, और ये फिर हुआ सेकंड्स में। अगर हम इस पूरे को सॉल्व करें देन व्हाट यू विल फाइंड आउट, यू विल गेट 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकेंगे? 9.5 × 10⁻15 मीटर। अगर आप कंपेयर करें यहाँ, इफ़ यू कंपेयर दैट वन एस्ट्रोनॉमिकल इट इज़ 1.5 × 10⁻11 मीटर। आप ऑर्डर भी अगर देखें तो ये है 10⁻11, ऑर्डर इज 11 + 11, और यहाँ जो 1 लाइट ईयर का जो ऑर्डर है दैट इज 10⁻15 मीटर। सो इट इज 1 लाइट ईयर। ओके, सो 1 लाइट ईयर इट इज इक्वल टू 9.5 × 10⁻15 meters. Okay, then coming to the another biggest or the largest practical unit of distance, that is in astronomy, it is the parsec. Parsec, it is an abbreviation of parallactic second. पैरालैक्टिक सेकंड यहाँ पर मीन्स पैरालैक्टिक एंगल से बात की गई है, और ये पैरालैक्टिक एंगल क्या है? 1 सेकंड का। आपको पता है एंगल जो यूनिट्स हैं, एंगल को जो प्लेन एंगल को मेजर करने वाली जो यूनिट्स हैं वो हमारी रेडियन है, और अगर डिग्रीज की बात करें तो डिग्रीज में भी हम एंगल को 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है।
डिग्रीज को भी हम आगे 1 डिग्री दैट इज इक्वल टू 60 मिनट्स, इसको आगे हम डिवाइड करते हैं एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। अब बेटे एक आप अज्यूम कीजिए कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और रेडियस R है, और ये इसका सर्कमफ्रेंस है, और सर्कमफ्रेंस पर हम 2 पॉइंट्स ए बी सेलेक्ट करते हैं, और ए बी जो डिस्टेंस है दैट विल बी कंसिडर्ड द आर्क ऑफ द सर्कल। नाउ यू कैन सी दैट द आर्क ए बी इट इज सबटेंडिंग an angle theta at the center of the circle, and you know from mathematics, and you must have done it in 9th or 10th class, that theta or angle that is in radian, it is equal to arc upon radius। एक बार के लिए अज्यूम कीजिए कि ये सर्कल जिसका रेडियस r है, ये r बहुत बहुत ज्यादा होता, ऑर्डर ऑफ 10⁻15 और 16 मीटर्स। तो अज्यूम कीजिए कि इसका सर्कमफ्रेंस कितना ज्यादा होगा, और उतने ज्यादा सर्कमफ्रेंस में अगर हम ए बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो अगर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी अज्यूम करें तो वो डिस्टेंस भी एक तरह से एक स्ट्रेट लाइन की तरह नजर आएगा, राइट। तो इसी अजम्पशन को लेते हुए आप इस डायग्राम पर आइए। यहाँ P और Q समझ लो कि एक सर्कल है, उसका सेंटर O पर है, और OP ये उस सर्कल की क्या है, रेडियस, राइट। और उस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर एक तरह से मैंने 2 पॉइंट्स लिए हैं PQ, एक आर्क ली है, और इस आर्क का जो लेंथ है, जो इसका मेजरमेंट है, वो है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये ध्यान दो, इट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी इतना गैप है P और Q में जितना सन और अर्थ के बीच में गैप है। आप ये मान लीजिए कि P हमने ले लिया है सन और Q पर कौन है, अर्थ, तो ये डिस्टेंस हो गया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब इतना जो आर्क है जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है, पार्सेक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ये कहते हैं कि भैया यहां से आप इतना रेडियस ले जाइए, इतनी दूर तक ले जाइए कि जो एंगल बने वो कितना बने, 1 सेकेंड। और जब एंगल सेंटर पर 1 सेकेंड बन जाता है तो तब जो ओपी डिस्टेंस आपको मिला वो ओपी डिस्टेंस किसके बराबर होगा, 1 पार्सेक के बराबर होगा। ओके, ये बात ध्यान रखो कि कंडीशन ये है कि तुम्हें आर्क का डिस्टेंस कितना लेना है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और उस आर्क पर जिस पॉइंट पर एंगल 1 सेकेंड सबटेंड हो, जितने डिस्टेंस पर कितनी रेडियस होनी चाहिए कि सेंटर पर एंगल 1 सेकेंड हो, तो वो रेडियस क्या कहलाएगी, 1 पार्सेक। एक चीज मैं आपको यहां बता दूं, अगर आप ये ना समझे हो कि 1 सेकेंड, ये जो P और Q है ये कोई भी एंगल सबटेंड कर सकते हैं, लेकिन रेडियस डिफरेंट हो जाएगी। मैं यहाँ थोड़ा सा एक रेफरेंस लाइन लेती हूँ, थोड़ा सा मैं इस डायग्राम में अब और थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। मैं डॉटेड उसमें एक रेफरेंस लाइन लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये 1 सेकेंड का मतलब यहाँ पर क्या लिया गया है। अब तुम ये देखो, मान लो मैं ये पॉइंट ले लेती हूँ और यहां पर देखती हूँ कि P और Q कितना एंगल सबटेंड करते हैं। ये देखिए, O डैश। अब आप देख रहे हैं कि दिस एंगल इज नॉट इक्वल टू 1 सेकेंड, ये कुछ और एंगल है, ठीक है। और फिर ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी बदल चुका है, फाइन, लेकिन आर्क वही है PQ। ओके, तो कंडीशन क्या है कि आपको एक आर्क लेनी है जो कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है। कितने डिस्टेंस पर जाकर ये आर्क कितना एंगल, यानी कि कितना एंगल सबटेंड करना चाहिए, 1 सेकेंड। कितना एंगल सबटेंड करेगी, 1 सेकेंड। देन दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड 1 पार्सेक। या अगर हम कहें कि ये पार्सेक डिस्टेंस बहुत बड़ा है
तो आप ये डिस्टेंस जो मैंने डॉटेड लाइन में भी लिया है, दिस विल इक्वल टू 1 पार्सेक, क्योंकि ये सभी इसका क्या कहलाएंगे, रेडियस। ओके, नाउ कम टू द डेफिनेशन। It is the distance at which an arc of length 1 astronomical unit subtends an angle of 1 second of arc. It may also be defined as the radius of a circle at the center of which an arc of circle that is equal to 1 astronomical unit subtends an angle of 1 second. That will subtends an angle of 1 second. Okay, beta. Now, if we convert 1 parsec into meter, or if we express 1 parsec into meters, then it is equal to 3.08 into 10 raised to power 16 meters. और अगर मैं light years के साथ इसका comparison करूं, then you will find that 1 parsec is equal to 3.26 light years. यानी सबसे बड़ी biggest unit कौन सी है, parsec. पार्सेक ग्रेटर देन लाइट ईयर, ग्रेटर देन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये जो यूनिट्स हैं, ये प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, इनको हम फंडामेंटल यूनिट्स में नहीं लेकर जाएंगे, ठीक है। दीज आर दी अदर प्रैक्टिकल यूनिट्स टू मेजर लॉन्ग डिस्टेंसेस और लार्ज डिस्टेंसेस। वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट सम डिस्टेंसेस विच कैन बी measured by other practical units, and the distances are small distances. Okay, just I have to adjust the page. Correct. Fine. Some units to measure very small distances, and that is Fermi. आप अगर बात करें न्यूक्लियस, किसी एटम के न्यूक्लियस का साइज क्या है, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में अगर एक्सप्रेस करेंगे तो दैट विल नॉट साउंड गुड। ओके, किलोमीटर्स में भी नहीं कर उसको एक्सप्रेस करना एक अच्छा तरीका नहीं लगेगा। तो स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए भी हमने प्रैक्टिकल यूनिट्स बनाए हैं, और जिसमें फर्मी है तो 1 फर्मी दैट इज इक्वल टू 10 raised to power minus 15 मीटर्स। और अगर आप देखें तो जो न्यूक्लियस होता है एटम का, उसका जो एवरेज साइज होता है वो 1 फर्मी के इक्वल होता है, राइट। एंगस्ट्रॉम भी आपको पता है, ये आपने कई बार आपने ये, जैसे अगर बात करें हम वेवलेंथ्स की, अगर हम वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम की बात करें तो विबग्योर के बारे में आपको पता है, रेड कलर, येलो कलर एंड वॉयलेट कलर, इन सभी की कोई ना कोई वेवलेंथ होती है। और रेड से वॉयलेट के लिए जो वेवलेंथ का रेंज आता है, ये मैं सेपरेट यहाँ लिख रही हूँ। रेड का 7000 एंगस्ट्रॉम होता है रेड, और वॉयलेट आपका जाता है 4000 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है। वॉयलेट आपका जाता है 4000 एंगस्ट्रॉम, मेरे ख्याल से यहाँ विजिबल नहीं हुआ, फाइन। तो ये एंगस्ट्रॉम क्या है, दिस इज अनदर practical unit to measure small distances, and 1 angstrom is equal to 10 raised to power minus 10 मीटर। देखो ये ऑर्डर माइनस में आ गए। 1 angstrom is equal to 10 raised to power minus 10 मीटर्स। तो अगर मैं रेड कलर की वेवलेंथ को मीटर्स में कन्वर्ट करूँ, दैट इज 7000 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 7000 into 10 raised to power minus 10 मीटर, and that will be equal to 7 into 10 raised to power minus 7 मीटर, राइट। एंड अनदर दैट इज नैनोमीटर, और इसका सिंबल जो है दैट इज स्मॉल n। नैनो, नैनो मीन्स 1 नैनोमीटर, इट इज इक्वल टू 10 raised to power minus 9 मीटर। आपने ये सुना भी होगा नैनो टेक्नोलॉजी, यानी कि माइक्रो टेक्नोलॉजी, जो बहुत ही स्मॉल साइजेस पर वर्कआउट करती है। अनदर यूनिट दैट इज माइक्रोन, ये भी आपने सुना होगा। माइक्रोन मीन्स 10 raised to power minus 6 micron, 1 micrometer if I talk about, that is 10 raised to power minus 6 meter, ठीक है।
1 माइक्रोमीटर मीन्स 10⁻⁻⁶ मीटर। जैसे मैं ये लेंथ हो गया, चार्ज की बात करूं 2 माइक्रोकूलम, इसका मतलब है 2। सो बेटा इट इज 2 into 10⁻⁻⁶ कूलम। नाउ बेटा देर आर अदर यूनिट्स, प्रैक्टिकल यूनिट्स टू मेजर mass and time also. If I talk about the bigger units of masses, that is practical units to measure masses, that is ton, quintal, slug, pound. आपको पता है ton, that is also known as 1 metric ton की 1000 किलोग्राम, quintal 100 किलोग्राम, slug 1 slug 14.57 किलोग्राम, and there is pound आधा किलोग्राम के बराबर होता है लगभग, दैट इज 0.4536 किलोग्राम। नाउ देयर इज द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास, दैट इज चंद्रशेखर लिमिट, CSL। इट कैन बी रिटन एज CSL, ओके। और 1 CSL होता है जो सन का मास है उसका 1.4 टाइम्स। अगर मैं स्मॉल प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात करूं मास मेजर करने के लिए, तो एटॉमिक मास यूनिट है। एटॉमिक मास यूनिट हम डिफाइन कर चुके हैं। दिस इज द प्रैक्टिकल यूनिट सेलेक्टेड फॉर मेजरिंग वेरी स्मॉल मासेस लाइक एटॉमिक मासेस, मॉलिक्यूलर मासेस, बट इट इज नॉट द फंडामेंटल यूनिट फॉर मेजरिंग मास। फंडामेंटल यूनिट जो SI सिस्टम ने अडॉप्ट किया दैट इज किलोग्राम ओनली, ओके। इसी तरीके से बेटा हमारा जैसे टाइम का भी यूनिट्स हैं, सोलर डे, सोलर ईयर, ट्रॉपिकल ईयर, लीप ईयर, ल्यूनर मंथ और आपका शेक है। ये हम इन सभी को जो डिफाइन करके मैं इनका व्हाट्सएप पर 1-2-3 जो है नोट्स फॉर्म में आपको दे दूंगी, क्योंकि इनको अगर हम अभी डिस्कस करेंगे दैट विल टेक मोर टाइम, फाइन, एंड दैट इज फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज। Now coming to the methods to measure distances, and first of all we will discuss length measurement. आप ये देखिए जो आपकी ये यूनिट है, it is totally describing you the need of measurement, physical quantity। आपको अब लग रहा होगा कि ये 11th में हमने फिजिक्स कहाँ से शुरू किया, बिल्कुल बेस से आपका शुरू हुआ कि बच्चे को सबसे पहले यही बताया गया है कि तुम्हारे आसपास फिजिकल क्वांटिटी क्या है जो मेजर की जा सके। फिर आपको बताया गया उसको कैसे मेजर करोगे, उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड तो होना चाहिए, आपको यूनिट्स बताए गए, राइट। उसके बाद आपको सिस्टम्स बताए गए, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। देन अब आपको हम सिखाने जा रहे हैं कि हम कैसे मेजर कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को। और मेन हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो 3 जो 11th क्लास में जो हमारा सारा एक तरह से मैकेनिक्स चलेगा, तो उसमें हमें सबसे ज्यादा जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत है वो है लेंथ, मास एंड टाइम। तो आपको इस यूनिट में हम आपको कुछ मेथड्स हम डिस्कस करेंगे लेंथ मेजर करने के लिए, मास मेजर करने के लिए और टाइम मेजर करने के लिए। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करें लेंथ मेजरमेंट पर। और बेटा देखिए लेंथ मेजरमेंट भी आपका क्या होगा, जैसे डायरेक्ट मेथड्स भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट मेथड्स भी। अगर मैं डायरेक्ट मेथड की बात करूं देन वी कैन यूज मीटर स्केल। हम मीटर स्केल यूज कर, मैं अगर आपको कहूँ ये आप इसका ये गैप, ये जो है नोटबुक का ये डायमेंशन, वर्टिकल डायमेंशन मेजर करके दिखाओ, आप अपना स्केल यूज करेंगे एंड इट इज 29.7 सेंटीमीटर, राइट। ये एक तरह से एग्जाम्पल है डायरेक्ट मेजरमेंट का, राइट। हम अगर बहुत ही स्मॉल डिस्टेंसेस की बात हो, अगर मैं ये कहूँ कि गिव मी द डायमीटर ऑफ द रिफिल ऑफ दिस पेन, इस रिफिल का डायमीटर मेजर करो, तो मैं अगर स्केल से मेजर करूं तो मैं कुछ गलतियां करूंगी, दैट विल नॉट द एक्यूरेट मेजरमेंट। तो उसके लिए हमारे पास स्मॉल डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस हैं, और उनमें हम यूज कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज एंड स्फेरोमीटर। स्क्रू गेज से तो आप जैसे बहुत ही थिन वायर्स के डायमीटर भी आप मेजर कर सकते हैं। स्फेरोमीटर भी जो है, जो ये पेपर है, इस पेपर की थिकनेस क्या है आप उसको भी मेजर कर सकते हो। और ये तीनों ही जो डिवाइसेस हैं
ये आपको प्रैक्टिकल्स में सिखाए जाएंगे और यही आपके जो फर्स्ट टर्म के जो प्रैक्टिकल्स होंगे, हाउ टू यूज वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज एंड स्पेरोमीटर। अगर मैं बात करूं वर्नियर कैल, जैसे मीटर स्केल में अगर आप देखें लीस्ट काउंट, that is the minimum physical quantity और यहाँ अगर मैं बात करती हूँ मीटर स्केल या द डिवाइस यूज टू मेजर द लेंथ, तो मैं कहूंगी मिनिमम लेंथ या डिस्टेंस मेजर्ड बाय द डिवाइस एक्यूरेटली। फाइन, तो ये जो आपके ये लीस्ट काउंट की अगर मैं बात करूं तो मीटर स्केल में आप देखिए मिनिमम डिस्टेंस कितना मेजर कर सकता है, 1 सेंटीमीटर नहीं, 0 के बाद जो पहला डिवीजन है। यानी कि अगर आप देखें कि जो इसकी 10 डिवीजन्स हैं वो हैं 1 सेंटीमीटर के इक्वल, तो एक डिवीजन आपकी हो गई 1/10 सेंटीमीटर, और जिसको कि हम 1 मिलीमीटर भी बोलते हैं। तो मीटर स्केल की अगर मैं लीस्ट काउंट की बात करूं तो इट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। फाइन, इसी तरीके से अगर वर्नियर कैलिपर्स की हम बात करें तो वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट होता है 1/10 mm, मीन्स इट इज 0.1 mm and it is equal to 0.01 centimeter. And if I talk about screw gauge, then screw gauge has least count 0.01 millimeter. Same as that of स्पेरोमीटर। स्पेरोमीटर का भी जो लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर। इसको बहुत लाइट आप ना लीजिए, आप ये इसको ध्यान से देखें कि एक स्क्रू गेज कितना मिनिमम डिस्टेंस मेजर कर सकता है, राइट। तो अब हम बात करते हैं, चलिए, यानी कि डायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है, डायरेक्ट मेथड्स क्या होते हैं, जिसमें हम सीधा एक डिवाइस का यूज करेंगे और उस डिवाइस से हम उस क्वांटिटी को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। एंड इफ आई टॉक अबाउट इनडायरेक्ट मेथड्स, अगर मैं आपको कहती हूँ अरे वो 2 स्टार्स हैं, उनके बीच में कितना एंगल है, वो यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पर कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं, या मून का डायमीटर कितना है, जुपिटर का डायमीटर कितना है, पोल स्टार का हमसे कितना डिस्टेंस है। तो कैन यू थिंक अबाउट इट कि जहां हम पहुंच नहीं सकते, डायरेक्ट मेथड तो यूज होगा ही नहीं, डिवाइस को यूज नहीं होगा, तो वो डिस्टेंसेस। एंड देखिए, अब आपने इतना सारा आपने साइंस में पढ़ लिया है 9th एंड 10th में कि कुछ डिस्टेंसेस और कुछ डाटा आपके सामने ऐसा आया है जो इनडायरेक्ट मेजर किया गया है, चाहे वो मासेस की बात हो, चाहे वो डिस्टेंसेस की बात हो। तो देयर आर सम इनडायरेक्ट मेथड्स टू मेजर लार्ज डिस्टेंसेस, राइट, और जिसमें हम फिजिक्स के कुछ लॉज को यूज करते हैं, बेसिक फेनोमेना को यूज करते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। बहुत ही ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हमें लार्ज डिस्टेंसेस मेजर करने में हेल्प करती है। एक सिंपल सा एक यहाँ पर एक सबसे पहले केस में यहाँ डिस्कस करूंगी, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टार्स। मान लीजिए हमारे पास हम यहाँ पर हैं, पॉइंट O पर हैं, राइट, और ये जो है ये होराइजन लेवल है, ठीक है, और ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया है इसको आप एक तरह से प्लेन मानिए, दैट इज द प्लेन ऑफ होराइजन, और यहां से हमें 2 स्टार्स नजर आ रहे हैं, S1 और S2। अगर मैं बात करूं S1 एंगल सबटेंड कर रहा है होराइजन से θ1 और S2 सबटेंड कर रहा है θ2। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा थीटा विल बी θ1 माइनस θ2। ओके, अब ये टेलीस्कोप से हम θ1 और θ2 को मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन यहां आप सी द ब्यूटी ऑफ द कॉन्सेप्ट, हाउ वी इनडायरेक्टली मेजर द एंगल बिटवीन
two stars, right? So theta 1 we can measure directly, theta 2 we can measure directly. Fine. So by taking the difference, we can have the angular separation between the two distant stars S1 and S2. Now, but in the next class, we will discuss the determination of diameter of moon, and we will discuss the method of parallax. आपके लिए एक एक्टिविटी मैं यहाँ पर छोड़े जा रही हूँ, आपको एक एक्टिविटी करनी है, एंड जूम क्लास हम एक लेंगे, एक लाइव क्लास लेंगे जिसमें हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे. आपको अपने सामने अपना पेन रखना है, अपनी आंखों के सामने, बिल्कुल सामने, और इस पेन को एक बार आप अपनी लेफ्ट आई से देखेंगे, राइट आई को क्लोज करके, फिर इमीडिएट आफ्टर दैट you will see the pen with your right eye, keeping your left eye closed. What you will feel about the position of the pen? आपको ये महसूस होगा कि पेन जो है इसकी पोजीशन चेंज हो रही है. लेफ्ट आई से जब आप देख रहे हैं तो इसकी पोजीशन कुछ हो रहा है, राइट आई से देख रहे हैं तो इसकी पोजीशन कुछ हो रहा है. कोई भी ऑब्जेक्ट, आप रूम में बैठे हुए हैं, आप बल्ब की तरफ देख लीजिए, आप किसी भी चीज़ की तरफ देख लीजिए. अभी इसी वक्त आप बैठे हैं, इसी वक्त एक्टिविटी कीजिए. कोई भी चीज़ आप अपनी सराउंडिंग में देखिए और उसको एक बार लेफ्ट आई से देखिए और दूसरी बार राइट आई से. विल यू ऑब्जर्व, कौन थोड़ा सा जल्दी आप ये करना साइमल्टेनियसली एक तरह से, कि कुछ आपको उसकी पोजीशन में, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में शिफ्ट महसूस होता है, राइट? अगर आपको शिफ्ट महसूस होता है तो हम क्या कहेंगे, दैट द ऑब्जेक्ट, द चेंज इन द शिफ्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट्स, एंड दिस फेनोमेना, दिस चेंज इन शिफ्ट, this change in position, that is called the parallax, right? We will discuss in the next class what is parallax and what is parallactic angle and how we can use this parallax method to measure the distance of a distant star. Okay, so till then, goodbye, stay safe and stay healthy. Thank you.